In last class, we did revision work of partnership, in which we completed by features, advantages, disadvantages, registration procedures, benefits of registration, partnership deal. Today's class, we are going to start joint stock company. Joint stock company आज हम शुरू करेंगे. What is the meaning of? Basically, that is a company. Company क्या होता है? According to 2013 में क्या definition given है आपके कंपनी का, और कंपनी के कौन वेरियस आपके फीचर्स हैं, और सोलोमन वर्सेस सोलोमन का एक केस स्टडी भी हम पढ़ेंगे आज, ठीक है. बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू डू सम एमसीक्यूज क्वेश्चंस ऑन द पार्टनरशिप. एवरीवन, सब लोग ध्यान से स्क्रीन पर देखिए एंड रेज कीजिएगा हैंड बिफोर स्पीकिंग अ आंसर. प्लीज रेज योर हैंड. ओके, चलिए. एवरीवन ऑन स्क्रीन. Yes, you all are able to see the questions. You all are able to see the questions. Yes, ma'am. Okay. So question number 1: to start a partnership business, what should be the minimum number of partners? Two हो जाएगा मैम. Okay. इसमें तो कुछ बताना नहीं था. Maximum 50 हो गया. 100 से 8 converted to अब 50 हो गया है. ठीक है. और अगर हम लोग जब प्राइवेट कंपनीज पढ़ेंगे ना, तो प्राइवेट कंपनी का अब पहले लिमिट था 50 और अब हो गया है 200 200. तो वो हम जब प्राइवेट और पब्लिक पढ़ेंगे ना, तो मैं बताती चली जाऊंगी क्या क्या डिफरेंसेस आया है डायरेक्टर्स में, नंबर ऑफ पार्टनर्स में. ठीक है, चलिए. ओके, नेक्स्ट. व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज यूज्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस? written होगा मैम. बोथ सी होगा मैम. नन होगा मैम. Okay, next question. In partnership, partners' liabilities are online class. Unlimited. D ma'am. अनलिमिटेड. Who is saying D? In partnership, wait. In partnership, एक काम कीजिए, please don't give answers. I will tell you the answers. ठीक है, better है ज़्यादा, क्योंकि ऐसे फिर कोई फायदा नहीं हो रहा है. बच्चे यहाँ भी चला रहे हैं, आप लोग भी शाउट कर रहे हो. It's not right. चलो. In partnership, partners' liabilities are both A and C. D. The answer will be D. Why? Because the unlimited liability is there in the general partnership, but when we are talking about the limited liability partnership, then the liability of the partners are limited. Whatever the amount they contributed, whatever capital they contributed, they have their liability is within that amount, right? So the answer will be both A and C. In partnership, partners' liabilities are unlimited as well as the limited. ठीक है, यहाँ पर ये क्या बोलते हैं उसको, लिमिटेड टू द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, ये ए एंड सी दोनों होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. बिकॉज ऑप्शन तो बी भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ ए नहीं आएगा ना फिर, इसलिए द आंसर विल बी ए एंड सी. इज अ पार्टनरशिप फर्म कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी? क्या पार्टनरशिप फर्म आपका सेपरेट लीगल एंटिटी है? माही, यस. Yes. No, ma'am. No. A, ma'am. Anyone else? Partially yes. No ma'am. The answer will be partially yes. Why? Yes, Why? sir. I'm just telling Because you some why. sub-concepts are because some Monica, please keep quiet. Monica, please. Why? The answer is why. Why that is partially separate legal entity? Because of the limited liability partnership, the separate legal entity case is there because हम अपना आपकी liability को, ठीक है, और आपके पर्सनल लाइबिलिटी को हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं ना, इन द केस ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. बट इन द केस ऑफ द जनरल पार्टनरशिप एंड अदर पार्टनरशिप द लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड.
So in that case, you have to pay the personal assets. You have to obviously sell that for basically providing the amount to the third party or creditors. ठीक है? So in that case, the answer will be partially yes. ठीक है? क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आपका जो एंटिटी है और जो आपका पार्टनरशिप है वो दोनों क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, क्योंकि आपको अपना पर्सनल एसेट जहां नहीं देना पड़े वहीं समझ जाइए देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. ठीक है, तो द आंसर विल बी पार्शियली यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens when interest on drawings is charged to partners? Credited to partners current account, not shown in the current account, debited to the partners capital account. Yes, Mahi? C. Ma'am, C. Debited to partners capital. Offline class? Ritik? C होगा मैम, C. Okay. ध्यान से देखिए, what happen when interest on drawing, मतलब इंटरेस्ट लगेगा आपके कैपिटल को ड्रॉ करने में, यानी कैपिटल को आप ड्रॉ करोगे तो क्या होगा बेसिकली, तो दैट इज बेसिकली डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से वो क्या हो जाएगा, कम कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, आई थिंक इसका आंसर तो सभी को पता है. व्हाट इज द पार्टनरशिप रिटन एग्रीमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड. C होगा. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, in absence of a partnership agreement, what will be the percentage of profit share ratio between the partners? क्या होगा अगर वहाँ पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है? डी होगा. इक्वल. Then the profit will be shared equally between the partners, right? Then the profit will share equally between the partners if there is no partnership agreement. Next question, which is not a feature of partnership business? Which is not a feature of partnership business? लिमिटेड लाइफ मैम. लिमिटेड लाइफ. कौन सा नहीं है पार्टनरशिप का फीचर? मैम सी हो जाएगा. लिमिटेड. सी मैम. हो जाएगा. लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है ना उसका फीचर. अनलिमिटेड, लिमिटेड लाइबिलिटी इज नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप. जनरली ऑल द पार्टनरशिप ज्यादातर अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ चलता है, एक्सेप्ट द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. So the answer will be, normally we can take that the liability of the partnership is unlimited. So limited liability is not the feature of the partnership. Clear हो गया? Next, question number 9. Limited life यानी कि जो आपका बिजनेस है उसका एक टाइम तक सिर्फ लाइफ है. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये जो एक बोल सकते हैं ना परपेचुअल, नो परपेचुअल सक्सेशन, किसी की भी डेथ हो जाएगी पार्टनर्स की, अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर कोई अनलॉफुल बिजनेस, मतलब कोई लीगल बिजनेस चला रहा होता है, तो ऐसे केस में हम क्या होता है, फर्म को बीच में ही हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं. ठीक है, किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई, दो पार्टनर में से एक की भी डेथ हो गई, तो आपका क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगा. तो उसकी लाइफ क्या है, लिमिटेड है. कंपनी के साथ ये सिचुएशन नहीं है. क्यों नहीं है कंपनी के साथ ये सिचुएशन? बिकॉज आपका जो पार्टनरशिप है, मतलब सॉरी जो आपका पर्सन है और जो कंपनी है, वो दोनों की जो अपना अलग अलग एंटिटी है, कोई आए या कोई जाए, आपका कंपनी चलता रहेगा, लेकिन वही चीज पार्टनरशिप में नहीं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच काइंड ऑफ पार्टनरशिप one partner has unlimited liability and other partner have limited liability? Question number 9. Yes, Anisha? Yes, ma'am. Limited liability partnership. Other? Yes ma'am. Yes, ma'am. Limited liability partnership. Yes ma'am. Actually, let me tell you one thing. In question number 9, the answer will be limited partnership. लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में वो given ही नहीं है ऑप्शन. ठीक है, so the answer will be limited partnership. Limited liability partnership हो ही नहीं सकता, क्योंकि limited liability partnership में सारे के सारे पार्टनरशिप की liability क्या होती है, limited होती है. So the limited partnership will be the answer
वेयर द पार्टनर्स के जो आपके क्या होंगे, लाइबिलिटी होगा पार्टनर का, कुछ लोगों का अनलिमिटेड होगा, कुछ लोगों का लिमिटेड होगा, उसको कहते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which type of partnership have no agreement in terms of duration of partnership? Yes, प्रत्यय। मैम पार्टिकुलर पार्टनरशिप हो जाएगा मैम, डी। ऑफलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, which type of partnership have no agreements in term of duration of partnership? The answer is partnership at will. At will होगा मैम। Partnership at will, why? Because why the answer will be partnership at will? Why the answer will be partnership at will? मैम क्योंकि कोई पीरियड फिक्स नहीं होता है और Why the answer will be partnership at will? Because आपका उसी केस में कोई डेट मेंशन नहीं होगा, कितने दिन तक लाइफ है वो मेंशन नहीं होगा, डिटरमिनेशन नहीं होगा मेंशन, डिटरमिनेंट्स मेंशन नहीं होगा, so that is in the partnership at will. Particular partnership में the date will be mentioned, लिमिटेड पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड पार्टनर्स, अनलिमिटेड दोनों लायबिलिटी वाले पार्टनर्स होंगे आपके। इन किसमें होंगे ये? लिमिटेड पार्टनरशिप में। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जहां सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। एंड वन इज जनरल पार्टनरशिप जहां पर आपके सब आपके कौन हो सकते हैं? नॉर्मल पार्टनर्स होंगे, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा, इवन माइनर पार्टनर्स भी हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, सो ऑल दीज क्वेश्चन जितने भी एमसीक्यूज करवाए, किसी को कोई डाउट है एमसीक्यूज क्वेश्चंस में? क्लियर है पूरा? पार्टनरशिप एक बार डिसोल्यूशन का कुछ पार्ट है, इसी दिन पे 10 मिनट पहले फ्री होंगे ना क्लास में, तो उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कंपनी। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी? कंपनी क्या है? 3-4 लोग के लिए, 1 पर्सन कंपनी इज आल्सो देयर। कोई भी अपना कंपनी को जब रजिस्टर कराते हैं पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में, तो वो क्या हो जाती है? कंपनी बन जाती है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जब कोई कंपनी पब्लिक कंपनी होती है तो उसके पीछे क्या लगा रहता है? लिमिटेड, यानी कि वो कंपनी क्या है? लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, या अगर कोई कंपनी प्राइवेट है तो उसके पीछे क्या लगा? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, ये कभी भी अपने शेयर्स को इशू नहीं करती, कभी शेयर्स को ट्रांसफर नहीं करती है। बट लिमिटेड कंपनी जैसे रिलायंस लिमिटेड, उसके शेयर्स मिलते हैं ना मार्केट में, तो दैट इज अ लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पर जो कंपनी एक्ट है, दैट इज अकॉर्डिंग टू 1956, आपका सबसे पहला इंडियन कंपनीज एक्ट आया 1956 में। उसके बाद उसको अमेंड किया गया और अब आपका जो एक्ट है वो कौन सा चलता है? कंपनीज एक्ट 2013। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी, उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आज हम लोग फीचर्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखिए, कभी भी ऐसे लिखना है इन कंपनी, मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद यहां से शुरू कीजिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन इज आल्सो देयर। ऑलवेज रिमेंबर, कंपनी हमेशा ही रजिस्टर्ड होती है। कंपनी क्या होती है? हमेशा रजिस्टर्ड होती है। कभी भी टाइम मिले तो जाइए और MCA का साइट ओपन कीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। You will get all kind of information that how we can register our company. आपको पूरा का पूरा ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा और अब ऑनलाइन प्रोसीजर कन्वर्ट हो गया। पहले क्या था? कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो भी चीजें वो आपको लगा करके देना पड़ता था किसको? आपके रजिस्ट्रार को। ठीक है, फिर वहां से वो रजिस्टर होता था। बट अभी क्या है? यू कैन डू दिस प्रोसीजर थ्रू ऑनलाइन, राइट? सो लिखिए इसमें, a registered association which is an artificial, a registered association which is an artificial legal person, which is an artificial legal person, comma, having an
independent legal, having an independent legal entity, having an independent legal entity with perpetual succession, with perpetual succession, with perpetual succession, comma, a common seal, a common seal with perpetual succession, comma, a common seal for its common seal, SEAL, common seal for its signature, for its signature, seal, SEAL, for its signature, for its ITS, its signatures, comma, a common capital, a common capital, a common capital comprised, COMPRISED, comprised of transferable shares, a common capital comprised of transferable shares and carrying limited liability. A registered association which is an artificial legal person, comma, having an independent legal entity with perpetual succession, comma, a common seal for its signatures, comma, a common capital comprised of transferable shares and carrying limited liability. Why I am using comma again and again? Let me tell you, the definition is written जैसा लिखा होता है as it is definition लिखा जाता है. Even जो अभी आप लोगों ने लिखा है definition को, उसको inverted comma में डाल दीजिए इस तरीके से, और यहाँ से closing डालिए सब लोग. This is a way of writing definition. कोई भी किसी के द्वारा definition हो, जैसे मान लीजिए कि हेनरी फेयोल ने कोई definition दिया, या फिर आपके पीटर ड्रकर ने कोई भी डेफिनेशन किसी पर्सन के द्वारा हो, या लीगल अथॉरिटी या एसोसिएशन के द्वारा गिवन हो, डेफिनेशन इज ऑलवेज रिटन इन द इन्वर्टेड कॉमा फॉर्म. एंड इफ यू आर राइटिंग द मीनिंग, अगर आप मीनिंग लिखते हो तो यू कैन राइट नॉर्मल, ठीक है. एंड इन डेफिनेशन ऑलवेज राइट अकॉर्डिंग टू दिस इंडियन कंपनीज एक्ट, कंपनी मीन्स इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है. So now, what is the meaning of these words which is given in the definition? Let me elaborate it. इसमें से ज्यादा जो आपके पार्ट्स हैं, जैसे लीगल एग्जिस्टेंस एंड ऑल, ये सारे आपके फीचर्स में भी कवर हो जाएंगे, बट मैं डेफिनेशन बता देती हूँ. एक ऐसा एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड है, साथ साथ में वो क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है. आर्टिफिशियल लीगल पर्सन यानी जैसे हम लोग पर्सन है, वी आर द नेचुरल ह्यूमन बीइंग, बट दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ पर्सन, बट दैट पर्सन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है. नेक्स्ट, उसमें और क्या होगा, दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी जो नॉर्मल उसके एम्प्लॉइज है, कंपनी के जो एम्प्लॉइज है और वो जो कंपनी है, दैट बोथ आर सेपरेट. दोनों क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है. और सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों है, इसके ऊपर एक केस स्टडी है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, वो मैं करवाऊंगी, ठीक है. तो सेपरेट लीगल एंटिटी है. परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेचुअल सक्सेशन? एक्चुअल में जो आपका पार्टनरशिप में क्या है कि कोई किसी की भी डेथ हो जाएगी, सोल प्रोप्राइटर में क्या है, किसी की भी डेथ हो जाएगी तो फर्म क्या हो सकता है, बंद हो सकता है, क्लोज हो सकता है, खत्म हो सकता है. बट कंपनी का ऐसा सिचुएशन नहीं है. द कंपनी विल गोइंग ऑन, ठीक है. कंपनी किसी की भी डेथ हो जाएगी तो कंपनी बंद नहीं होगा, ठीक है. तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है. और फिर परपेचुअल सक्सेशन है, यानी चलता चला जाएगा कंपनी. और एक और चीज है, दैट दे विल यूज द कॉमन सील. ये कॉमन सील आपको कब देखने के लिए मिलेगा, लेट मी टेल यू वन थिंग. जैसे कि अगर आपकी कभी जॉब लगेगी, ऑब्वियसली लगेगी सबकी जॉब, उस सिचुएशन में आप देखोगे कि आपको जब वहां से ऑफर लेटर मिलेगा तो उस ऑफर लेटर में एक स्टैंप लगा होता है, देखते हो ब्लू कलर का स्टैंप होता है, ब्लू कलर का स्टैंप होगा, वो ऐसे, वो एक ऑथेंटिकेशन है कि आप इस कंपनी में सिलेक्टेड हो. तो वो जो सील है वो किसके बिहाफ में लगाया जाता है, कंपनी के बिहाफ में. दैट इज अ सिग्नेचर ऑफ कंपनी. वो किसका सिग्नेचर है, कंपनी का सिग्नेचर है. तो उसको हम कहेंगे कॉमन सील भी है इसके पास,
और साथ साथ में क्या है, दे कैन ऑल्सो कैपिटल होगा, लेकिन कैपिटल में दोनों ऑप्शन हो सकता है, यानी कि ट्रांसफर हो भी सकता है शेयर्स और नहीं भी, और लाइबिलिटी क्या होगी यहाँ लोगों की, लिमिटेड। तो इसको कहेंगे हम क्या, कंपनी। ये क्या होगा आपका, क्लियर हो गया। तो इसमें 6-7 आपके फीचर्स निकल गए, कौन कौन से, पहला तो फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील एंड लिमिटेड लाइबिलिटी। तो 5 फीचर्स तो आपने इसी से डिराइव कर लेना है, ठीक है, बाकी फीचर्स को भी लेकिन लिख लो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स। पहला फीचर लिखिए, फर्स्ट फीचर, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इसको शॉर्टकट में एक मिनट, मुझे जरा एक मिनट पेन देना। फर्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस या लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, जो कंपनी है वो अपने मेंबर से क्या होगा, अलग होगा, ठीक है, और उसका जो प्रॉपर्टी होगा, जो उसके कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, जो वो फाइल सूट करेगा, वो सब कुछ वो अपने नाम पे करेगा। कौन, कंपनी अपने नाम पे करेगा, पर्सन अपने नाम पे करेगा अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो। शेयर होल्डर्स जो होंगे, जो शेयर होल्डर्स होंगे कंपनी के, ठीक है, वो भी क्या होंगे, कंपनी से सेपरेट होंगे, मेंबर हो सकते हैं बट क्या होंगे, वो सेपरेट होंगे, ठीक है। अब इसमें एक सिचुएशन आई है, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट क्यों आया। बहुत पहले एक सोलोमन नाम का एक पर्सन था, इंडिया के बाहर का ये केस स्टडी है। सोलोमन एक पर्सन था, तो वो एक बिजनेस चला रहा था सोल प्रोप्राइटरशिप में, अपना कोई बिजनेस चला रहा था, शूज का बिजनेस वगैरह चला रहा था। फिर बाद में उसने अपनी उस शूज की बिजनेस को लिमिट क्या कर लिया, वो अपने कंपनी में कन्वर्ट कर लिया। क्या कर लिया उन्होंने, अपने कंपनी में कन्वर्ट कर लिया। जब उसने कंपनी में कन्वर्ट किया तो उसमें से जो शेयर्स था, उसके ना 6 बच्चे और अपनी वाइफ, उन सब में एक एक शेयर बांट दिया और खुद के पास अपने सारे शेयर्स अपने नाम पे कर लिए, ठीक है। अब क्योंकि कंपनी उसी का था तो वो चल रहा था कंपनी। एक बार क्या हुआ कि कंपनी को काफी लॉस हुआ और कंपनी डिसॉल्व होने वाली सिचुएशन में आ गई। जब कंपनी डिसॉल्व होने वाले सिचुएशन में आ गई तो जो क्रेडिटर्स जो थे, जो भी सप्लायर्स, क्रेडिटर, थर्ड पार्टी था, उन लोगों को भी पैसा पे करने का इनके पास पूरा प्रॉपर अमाउंट नहीं था। तो ऐसे केस में जो सोलोमन था, उसका जो भी प्रॉफिट हुआ था, जो सोलोमन को प्रॉफिट हुआ था, क्रेडिटर्स ने कहा कि आप मुझे उस प्रॉफिट से पैसा पे करो। इस बात पे सोलोमन ने कोर्ट में केस किया कि भाई मैं जो हूँ, मैंने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसका कंपनी से क्या रिलेशन, अब तो ये कंपनी है। तो इसमें बाद में वर्डिक्ट आया था, इसमें जजमेंट आया था कि सोलोमन जो है वो रजिस्टर सोलोमन और उसकी जो कंपनी है सोलोमन लिमिटेड, वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसीलिए सोलोमन लिमिटेड का जो भी डेप्ट है वो सोलोमन नहीं भरेगा, इसीलिए इसका नाम है सोलोमन वर्सेस सोलोमन। आई बात समझ में। इसको एक बार और इलैबोरेट करूंगी, आपको थोड़ा शॉर्टकट में बताया है, इसकी पूरी कहानी बताऊंगी, इसको शॉर्टकट में लिखवाऊंगी, ठीक है, बिकॉज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस में इसको लिखना जरूरी है। तो बाद में बस इसी बात के बाद ये वर्डिक्ट आया कि भाई कंपनी और कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो दोनों अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कॉर्पोरेट वील का भी कंसेप्ट है, VEIL। कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है, जिसको कहते हैं कानून, मतलब कॉर्पोरेट वेल का मतलब एक पर्दा होता है, ठीक है, वेल को कहते हैं पर्दा। अब यहाँ पर इस पर्दे को कब हटाया जाता है, लिफ्ट कब किया जाता है, हटाया कब जाता है, जब कुछ ऐसे केसेस आते हैं तब जा करके ये जो डिफरेंसेस है ना सेपरेट लीगल एंटिटी वाला, ये खत्म हो जाता है। तो कॉर्पोरेट व्हील क्या है इसको, और इस बार सोलोमन वर्सेस सोलोमन को मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि देखो कंपनी को किसके द्वारा बनाया जाता है, लॉ के द्वारा बनाया जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद उसकी एग्जिस्टेंस होती है और उसको खत्म करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए भी हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। कोई भी पर्सन, कोई भी मेंबर जो है, उसकी डेथ होने पे इसके लाइफ पे, यानी कंपनी के लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। So a company is created by law and only law can bring to end of its existence, ठीक है। And the life of the members, जो लाइफ है मेंबर्स का, वो आपकी कंपनी के लाइफ को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता है। किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, लुनेंसी हो जाए, in any of the case the company is not going to end, ठीक है। इट कंटिन्यू, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर सारे मेंबर भी डेथ हो जाएंगे तो भी ये कंटिन्यू चलता रहेगा।
members may come and go but the company goes on until it wound up, यानी कंपनी तब तक चलेगी जब तक उसको लीगली खत्म या बंद नहीं करवाया जाता, वाइंड अप नहीं करवाया जाता. Partnership with a notice के through we can dissolve the partnership, right? But in the case of the company, as comparison to the partnership and sole proprietorship, it is a complex process. इसको existence में लाना भी बहुत complex process है. First, when you will go to the MC की जब आप साइट पर जाओगे, वहां पर एक रन का फॉर्म मिलता है, RUN, ठीक है. रन का फॉर्म मतलब क्या होता है? रिजर्व्ड, मतलब जो आपका नाम होता है ना कंपनी का, उस नाम को पहले सिलेक्ट किया जाएगा, फिर उसका नाम का रजिस्ट्रेशन होगा 1 महीना, उसके बाद फिर पूरा रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब 2 से 3 महीना आपको लगता है रजिस्ट्रेशन कराने में, पूरा उसको स्टार्ट करने में. तो जितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कंपनी को शुरू करना, उतना ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसको डिसॉल्व करना, कंपैरेटिवली टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप. ठीक है. तो परपेचुअल सक्सेशन. नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी, एंड आई नो कि लिमिटेड लायबिलिटी सबको पता ही होगा. ठीक है. कंपनी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है. कोई भी मेंबर कंपनी के डेप्ट के लिए, कंपनी के लोन के लिए जिम्मेदार नहीं. क्लियर हो गई? कंपनी का लोन, आज मान लो कि मैं किसी जगह पे काम करूं, फॉर एग्जांपल, जस्ट इमेजिन, ठीक है, बट दैट इज नॉट इन हैपन इन द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप. So in short, what we can say that the liability of every employees, every people or every member of the company is separated from the debt of the company. Company के debt loan से उसका कोई भी नाता नहीं. ठीक है. Next is the transferability of shares. Next one is transferability of shares. इससे ये जो फोर्थ पॉइंट है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, केस स्टडी करेंगे सोलोमन वर्सेस सोलोमन की. इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको ब्लैक बोर्ड में दिखाऊंगी, किस किस तरीके से शेयर्स था, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, इसके बारे में. पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी भी हम देख लेते हैं. ठीक है. थैंक यू मैम.